Let me introduce to myself first of all. Myself Indresh Kumar Singh, Faculty of Civil Engineering Department, BVD and IIT Lucknow. Okay. Today we will start a new modules 2. We have completed the module 1. Now we will start module 2. Okay, means unit 2 in surveying. It is very interesting unit in whole surveying. And in this subject, this is, I can say, it is very easy also. Okay. So, in this we introduce about the simplest topic, that is curves. Okay. We have learned about the surveying, introduction surveying, principle of surveying and many other things like instrument we will use in surveying. Surveying and geomatics, today we will start a new unit, unit 2nd. And in this unit we have learn about the curves, which curves we introduce or we have used in surveying. Okay. So, we will start in this lecture, we will give you a introduction about this whole curves and units. Okay. So, let us we start today's topic, introduction of curves. Okay. So, module 2nd and lecture number 1, in this lecture we have started about the curves, and curves we know very well that curves mainly used whenever we construct or whenever we make a road. Okay. So, in highway there are requirements of these curves a lot of, and we know surveying is the first step to construct anything. Okay. Whenever civil engineering start, then surveying is the first step. First we all do the survey at the site, and after that we have starting the other works. Okay. So, curve is the very important things. We have introduced about the syllabus of unit 2nd in which we have studied the curves. Okay. So, in this unit here curves, first of all elements of simple circular curves. Okay. So, there is the curves, and in the curve we know that which type of the curve we have studied. So, like a simple curves means, curve means something which are not straight. Okay. So, we have studied in this unit first of all about the curves, and after that the element of simple circular curves, and also we have studied about the theory, methods of setting of the simple circular curves, transition curves, types, characteristics and equations of various transition curves. Okay. In this unit we have learned all these things. Okay. So, introduction to vertical and circular curves also we have studied in this. Okay. If we will talking about the curves, and let me introduce about the curves. So, we have start now the first topic and overall introduction of this 2nd units. Okay. So, we have know कि what we will study in this unit 2nd. मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक ऐसी यूनिट है, इट इज़ वेरी इजी यूनिट्स. ओके. बहुत सिंपल है, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, और जिस तरीके से इसमें आपका ये कर्व्स नाम है जिसका अगर मीनिंग आप समझना चाहें सेम टू सेम वही काम यहाँ पर करना है. मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाऊंगा और फिर उसी से पूरी यूनिट को एक्सप्लेन करूंगा, और आप लोग इसको ध्यान रखिएगा. आपके सब्जेक्ट में, आपके एग्जाम के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपका ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कि कर्व्स जो है, तो कर्व्स क्या होगा, कोई भी चीज़ है अगर ये स्ट्रेट जा रहा है, इसको तो आप बोलेंगे नहीं, इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ स्ट्रेट लाइन. ओके. ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है. ओके. तो ये तो कर्व नहीं कहलाएगा. कर्व क्या होता है कि जब कोई चीज़ स्ट्रेट नहीं होगी, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया. ओके. ये आपका एक कर्व हो गया. ओके. तो कर्व्स के बारे में, इसके बारे में ही पढ़ना है. क्यों पढ़ना है ये हम आपको बताते हैं.
ओके तो अब हमको क्या करना है कि मान लीजिए कोई भी एक आपको रोड बनाना है, कहीं हाईवे बनाना है, और आप समझ लीजिए कहीं से आपको टर्न देना है। आप कोई भी रोड ऐसे ले गए और फिर आपने ऐसे टर्न दे दिया। अब आप बताइए यहाँ से जो व्हीकल्स जाएगा उसके लिए टर्न करना बहुत टफ काम होगा। ओके तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हम क्या करते हैं एज ए सिविल इंजीनियर, पहले ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और हम कहते हैं कि इस मोड़ पे, इस टर्न पे हमको कुछ ऐसी चीज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन रहेगा तो वो आसानी से हो सके। तो अब ऐसी सिचुएशन आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे कर्व प्रोवाइड करा दे तो टर्न करने में आसानी रहेगी। देखिए अब आपको लग रहा होगा अगर यहाँ से कोई चीज गई तो वो आसानी से टर्न कर सकती है। तो अगर ऐसी ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लाइफ में आती हैं, ओके तो उन सब प्रॉब्लम्स में हम क्या करेंगे, कर्व्स को प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें क्या होगा इस यूनिट में कि इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अब कोई भी चीज है तो उसके बारे में, उसके सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वैसे ही यहां पर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्स ऑफ द सिंपल सर्कुलर कर्व। देखिए सर्कुलर कर्व्स टर्म्स यूज किया गया, क्यों, क्योंकि कर्व्स जो है हमारा स्ट्रेट तो होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सर्कल के टर्म में बन रहा है, तो इसीलिए इसको सर्कुलर कर्व बोलेंगे। और यहाँ पर हमको बेसिकली सर्कुलर कर्व पे ही ध्यान देना है। ओके उसके बाद फिर हमको एक चीज और पढ़नी है, थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ सेटिंग आउट सिंपल सर्कुलर कर्व्स। मीन्स एक हमको ऐसी थ्योरी पढ़नी है कि कैसे ये कर्व को हम ग्राउंड पे इसको हम सेट कर सकते हैं। ओके कैसे हम इसको प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, तो हमको ये भी पढ़ना है और इसके लिए कुछ मेथड्स दिए गए हैं, वो सर्वेइंग में आपको याद करने और पढ़ने हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व आएगा, वो आएगा ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व के बारे में बताना चाहेंगे कि वो क्या होता है आपका। देखिए ट्रांजिशन कर्व, ओके तो ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, ये एक ऐसा कर्व होता है कि जब हमारा एक स्ट्रेट और सर्कुलर कर्व को जोड़ने के लिए जो कर्व बनाया जाएगा उसको हम लोग ट्रांजिशन कर्व बोलेंगे। देखिए जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर आपकी ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, ओके और ये हमारा सर्कुलर हो गई, तो आपको पता ही है अगर सर्किल में कर्व है तो इसकी कुछ रेडियस होगी, मान लीजिए r, ओके और ये हमारी स्ट्रेट लाइन है तो इसकी रेडियस क्या होगी पता है आपको, इनफाइनाइट। तो अब यहां से क्या होगा, इनफाइनाइट से थोड़ी कम होगी, फिर कम होगी, फिर कम होगी, धीरे धीरे जब यहां तक आओगे तो आपको आर रेडियस मिल जाएगी। तो ये जो कर्व यहां से यहां तक का बनेगा, इसको जोड़ने के लिए, इस स्ट्रेट लाइन को इस सर्कुलर लाइन को जोड़ने के लिए जो कर्व हम ड्रॉ करेंगे उसको बोलेंगे ट्रांजिशन कर्व। ओके तो ये वाला फेज रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन कर्व। इसके बारे में पढ़ेंगे हम अभी और जब आगे आगे। और यहाँ पर भी अगर इस साइड में होगी, अगर ऐसे है स्ट्रेट लाइन है सर्कुलर, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी किस क्या हो जाएगी, ट्रांजिशन कर्व हो गई। ओके तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इक्वेशंस ऑफ वेरियस ट्रांजिशन कर्व्स, इंट्रोडक्शन टू वर्टिकल कर्व्स, इतना आपको यूनिट सेकेंड में ओवरऑल पढ़ना है। तो आज से मॉडल सेकेंड जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका ये फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं सर्वेइंग का, सर्वेइंग यूनिट 2 का। ओके तो आपको पता है कि सबसे पहले अगर डिफिनीशन की बात करें कि कर्व्स क्या होता है, अगर लिखना है आपको तो इसको आप लिखेंगे कि कोई भी एग्जाम आएगा तो उसमें कैसे इसको लिखना है। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि कर्व बनाना तो आपको आता है, अभी मैंने बनाया कि कर्व आपने ऐसे बना दिया, ओके फिर इसकी कहीं पे रेडियस आपने इस तरीके से कह दी, यहां से कर दिया, ये टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, यहां से कर सकते हो, बहुत आसान है। ओके ये बन जाएगा, बहुत आसान चीज है। लेकिन अब इसको कैसे आप लिखेंगे और कैसे समझेंगे, तो कर्व्स पूरा सेकेंड यूनिट में कर्व्स के बारे में ही पढ़ना है। जो कर्व्स हमको सर्वेइंग की कोई भी आपको जो ड्राइंग बनानी होगी उसमें अगर कर्व्स कहीं पर बनाने हैं तो उनको कैसे हम बनाएंगे और उसको कैसे डिफाइन करोगे। तो सबसे पहले उसकी डिफिनीशन देखते हैं कि क्या डिफिनीशन है। तो कर्व्स क्या होते हैं आप समझ लीजिए, कर्व्स आर रेगुलर वेंडिंग bends provided in the lines of communication like roads, railway and the canals etc to bring about the gradual change of the direction। ओके सिंपल सी डिफिनीशन लिखिए बिल्कुल कि कर्व्स कोई भी रेगुलर वेंट्स होते हैं जो प्रोवाइड कराए जाते हैं, मतलब वेंट्स आप समझ गए ना, वेंट्स मीन थोड़ा भी कहीं पर भी टर्न होना मुड़ना। अब ये इट में भी सर्कुलर हो सकता है, पैराबोलिक हो जाए, कोई भी हो, लेकिन होना क्या चाहिए, टर्म्स याद रखना है आपको, बेंड, बेंड मतलब थोड़ा मुड़ जाना, तो स्ट्रेट न जाकर आपको मुड़ना है थोड़ा। अब ये क्या हो सकता है, सर्कल हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, क्यूबिक पैराबोलिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो आपका कहीं पर भी अगर बेंड शुरू हुआ तो उसको हम लोग कर्व्स बोल देंगे, ओके, ना कि स्ट्रेट लाइन। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कर्व्स आर रेगुलर वेंट्स प्रोवाइडेड इन द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन लाइक रोड्स, रेलवे एंड कैनाल ईटीसी। ओके, तो अब हमको बेसिकली पता है रोड्स बन रहे हैं, वहां पे हमको इसको जरूरत पड़ सकती है, रेलवे लाइन अगर कहीं पे बन रही है, कैनाल्स बन रही हैं, वहीं पे हमको स्ट्रेट जाना होता है, तो वहां पर हमको क्या करना है उसके बारे में ये चीज समझनी है। तो फिर हमें ऐसी जगह पर कुछ ना कुछ बेंड्स प्रोवाइड कराने पड़ते हैं, ओके, टू ब्रिंग अबाउट द ग्रेजुअल चेंज ऑफ द डायरेक्शन। अब आप समझिएगा ये टर्म्स आपका कि कर्व्स जो रहेंगे ग्रेजुअल चेंज ऑफ डायरेक्शन हमारे जो रहेंगे किसमें, रोड्स, रेलवे या कैनाल्स। क्यों? क्योंकि अगर हमें मान लीजिए इधर से अगर कोई ये रेलवे लाइन जा रही है और आपको यहाँ पे लाना है कहीं इस डायरेक्शन में, तो अगर ये आप डायरेक्ट ऐसे चेंज किए तो रेलवे ट्रैक पे ये रेलवे लाइन ऐसे टर्न नहीं हो सकती है कोई भी रेल। तो क्या करना होगा कि इसको हमें ग्रेजुअली चेंज करना होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले से ही इसी को अगर बनाना चाहें तो यहां से ऐसे किए और फिर हम क्या करेंगे कि सर्कुलर प्रोवाइड कराना चाहो तो इस तरीके से, तो ये हो सकता है। तो ये बेंड किया और ग्रेजुअली चेंज हो रहा है हमारा डायरेक्शन, ओके। तो कर्व्स का मेन जो काम है आप समझ जाइएगा, जो भी कर्व्स पढ़ने हमको उनका एक ही काम है कि जो कर्व्स हैं वो हमारे क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन को या कोई भी ऐसा पाथ या ऐसा डायरेक्शन उसको हम ग्रेजुअली चेंज करें, बेंड करें, तो वो हमारा कर्व्स कहलाएगा, ओके। तो वही कर्व्स होगा। कर्व्स की डेफिनेशन सभी लोग याद कर लीजिए। कर्व्स आर रेगुलर बेंड्स प्रोवाइड इन द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन लाइक रोड, रेलवे एंड कैनाल्स ईटीसी टू ब्रिंग अबाउट द ग्रेजुअल चेंज ऑफ directions. Okay, I hope you understands the definition of curves. Now we will move on the curves. Okay, तो अब देखिए जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बना है कि कैसे कर्व्स बना है। अब आप सभी लोगों को इस डायग्राम के बारे में अच्छे से जानना है, ओके। ये एक ऐसा डायग्राम बना है, पहला जो डायग्राम मैं बना रहा हूं इस यूनिट में, इस डायग्राम का यूज पूरे यूनिट में आपको करते रहना है, ठीक। तो इस डायग्राम का हमें यूज करते रहना। देखिए कैसे क्या होगा कि दे एनेबल्स, कर्व्स क्या होते हैं उसका इंट्रोडक्शन चल रहा है। दे एनेबल्स द व्हीकल्स टू पास फ्रॉम वन पाथ ऑन द अनदर व्हेन द टू पाथ मीट एट एन एंगल। दे आर आल्सो यूज्ड इन द वर्टिकल प्लेन एट ऑल चेंजेस ऑफ ग्रेड टू अवॉइड द एब्रप्ट चेंज ऑफ द ग्रेड एट द अपेक्स। देखिए अगर जैसे ये स्ट्रेट लाइन जा रही है तो यहां से अगर चेंज करना हुआ तो ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये जो अपेक्स चेंजेस है इसको रिमूव करने के लिए, ओके, ये जो अपेक्स चेंजेस हो रहा है एट द पॉइंट ऑफ वी, इसको रिमूव करने के लिए हमको कहीं ना कहीं थोड़ा कर्व्स, थोड़ा बेंड उस डायरेक्शन में प्रोवाइड कराना होगा, ओके। तो जो वो बेंड्स प्रोवाइड कराना होता है, अब वो कितना बेंड हम कर रहे हैं, कितना ग्रेजुअली चेंज कर रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हम यूज करते हैं, ओके। तो वो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आप यूज करेंगे, कहां पर कितना हमको प्रोवाइड कराना है वो एक इंजीनियर समझता है जब भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे आप। तो कर्व्स क्या है, दे इनेबल्स द व्हीकल्स। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन में तो हम ये कह सकते हैं कोई व्हीकल्स है टू पास फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर when the two path meets at an angle। अगर कोई भी एंगल हो तो हम इसको कहते हैं ये वाला एंगल अल्फा, ओके। अगर इस अल्फा एंगल पे मिल रहे हैं T1 से T2 से, अगर कहीं पे हमको जाना है T1 से T2 पे जाना है तो एक एंगल पे कहीं पे मिल रहे हैं B पॉइंट्स पे, उसको हम कह सकते हैं अल्फा एंगल, ओके। तो अगर ऐसे मिल रहे हैं तो क्या करेंगे, दे आर आल्सो यूज्ड इन द वर्टिकल प्लेन। अभी हम आपको बताएंगे कि वर्टिकल प्लेन पे कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हिली एरिया हो गई, वहां पर हम फिर कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो वहां पे हमको वर्टिकल प्लेन्स बनाने होते हैं या एंडुलेशन जहां पर भी होता है, ओके। एट ऑल चेंजेस ऑफ ग्रेड्स टू अवॉइड द एब्रप्ट चेंज ऑफ ग्रेड एट द अपेक्स। जो अचानक चेंजेस आते हैं उनको चेंज करने के लिए, उनको हटाने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमको कर्व्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ओके। तो सबसे पहले अगर बात करूं यहां पर ओके, तो देखिए कि अगर यहां से कोई एक पॉइंट है तो इसको हम कह सकते हैं टेंजेंट पॉइंट, TC लिख सकते हो, टेंजेंट ऑफ कॉन्टेक्ट।
और ये वाला हमारा हो जाएगा टेंजेंस ऑफ परपेंडिकुलर जो भी रहेगा इधर वाला आपका। तो अब आप क्या कह सकते हैं कि ये लाइन हमारी कोई ए टू बी जा रही थी और सी से बी से सी की तरफ जा रहे हो, तो इस दोनों को ये जो अपेक्स एंगल, इसको अपेक्स बोलते हैं हम लोग, और इस पे जो ये वाला एंगल बनता है तो उसको हम लोग बोलेंगे अपेक्स एंगल भी बोल सकते हैं। तो ये वाला एंगल होता है, तो ये एब्रप्ट चेंज होता है। इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से एक कर्व प्रोवाइड किया। ये देखिए ये कर्व है कि नहीं। अब ये कर्व अगर आपका है तो हम ये कह सकते हैं कि ये रेडियस हमारा आर का होगा। इस रेडियस को भी आर कह सकते हो। हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो मैंने रेडियस आर आर लिखी, इसका मतलब क्या हुआ, ये सेम रेडियस हैं। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब सेम रेडियस ही हो। मे बी हमें ऐसा कर्व प्रोवाइड कराना पड़ जाए कि इसकी रेडियस R1 हो तो इधर की R2 हो। देखिए मैं कैसे बता सकता हूँ कि मान लीजिए कर्व आपको ऐसे प्रोवाइड करना पड़ा इस पॉइंट से, तो अब ये देखिए ये तो रेडियस R1 हो जाएगी। ओके, ये मान लीजिए यहाँ तक, और फिर ये वाला कर्व होगा तो इसकी रेडियस की अगर बात की जाए तो ये R2 हो सकती है। हमें ऐसा कोई कर्व प्रोवाइड कराना पड़े तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, अगर ये हमारे डिफरेंट होंगे तो इनको हम अलग नेमिंग देंगे। ओके, तो लेकिन आपके सिलेबस में डिफाइन किया गया है कि मेनली हमको सर्कुलर कर्व्स को ही डिफाइन करना है। तो सर्कुलर कर्व्स भी जब बात आएगी तो आपको ये ध्यान रखना रहेगा कि जो हमारी रेडियस होगी वो डिफरेंट तो नहीं होगी। ओके, वो हमारी सेम रहेंगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो R1 और R2 जब हमारी सेम ये दोनों रहेंगी, इक्वल होंगी, तब ये सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, आगे की कैलकुलेशंस जो होंगी बहुत आसान हो जाएंगी हमारे लिए। ओके, तो आपके सिलेबस में यूनिट सेकेंड में आपका सर्कुलर कर्व्स के बारे में ज़्यादा दिया गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो आगे जब हम कर्व्स में आज इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका हॉरिजेंटल कर्व्स एंड वर्टिकल कर्व्स, ठीक, इन दोनों के बारे में भी बात कर ले क्योंकि इनका भी यूज हमको आगे बहुत जरूरत पड़ने वाला है इस यूनिट्स में। तो उससे पहले ही मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हॉरिजेंटल कर्व्स कैसे होंगे और वर्टिकल कर्व्स कैसे होंगे। इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए। ये वाला आपको देखकर लग रहा होगा, अब आपके समझ में चीज़ें आसानी से आ जाएंगी। अब ये डायग्राम आपको देखिए और फिर आप सोचिए कि यहाँ पर कैसा कर्व बन रहा होगा। ओके, तो हमको दिख रहा है कि रोड तो बिल्कुल प्लेन है। देखिए ये रोड जा रही है, ये बिल्कुल प्लेन है, लेकिन अगर ऐसे स्ट्रेट गई और फिर ऐसे मुड़ी, ओके, और फिर देखिए यहाँ से भी एक कर्व प्रोवाइड कराया गया। इसको अगर हम ड्राइंग करना चाहें केवल एक लाइन में तो कहीं ना कहीं ऐसे बना है। अब ये है क्या, बिल्कुल प्लेन है, तो ये हॉरिजेंटली देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ अगर एक्सिस पे, वर्टिकल पे तो नहीं चेंज हो रहा है। ये देखिए अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस आप मान लीजिए, ओके, तो अब देखिए ये कर्व आप कहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। आप देखिए एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है उस पे ही इस कर्व को हम टर्न्स करा रहे हैं। तो जब टर्न करा रहे हैं, ना कि इस लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट प्रोवाइड करा रहे हैं। क्यों, यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी रही होगी हिली एरिया में कि नहीं हम स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट रोड कंस्ट्रक्ट कर पाए होंगे। तो जैसा कि इस डायग्राम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हमने हॉरिजेंटली उसको एक कर्व में टर्न किया है, हमने स्ट्रेट नहीं प्रोवाइड करा पाए तो उसको एक कर्व में टर्न किया है। तो ये कर्व जो प्रोवाइड कराया जाता है जिसको हम कह सकते हैं हॉरिजेंटल कर्व। ऐसे कर्व जहां पर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जहां पर बनेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे हॉरिजेंटल कर्व। ओके, तो देख लो इस डायग्राम में ध्यान से, ये आपका हॉरिजेंटल कर्व्स है और इन कर्व्स का हम यूज जैसे कि डायग्राम में है कि रोड्स में करते हैं, और इसी तरीके से रेलवे लाइन हो तो वहाँ पर भी किए जा सकते हैं, कैनाल्स बनाते हैं वहाँ पर भी किए जा सकते हैं। तो इनको समझना रहेगा। अब इसकी हम ड्राइंग बनाएंगे, वो आप अपने सर्वेइंग में हमको करना है काम। ये काम जो है ये आपका हाईवे में आएगा कि हाईवे जब कंस्ट्रक्ट किया जा रहा होगा तब उनको वो कर्व प्रोवाइड कराए जाते हैं। जब कोई सर्वेयर सर्वे करता है और पूरा साइट का सर्वे करने के बाद वो ड्राइंग प्रोवाइड कराता है किसी इंजीनियर को, तो उसके बाद में जब हमारा सर्वेयर देता है तो फिर हम ये ऐसे कंस्ट्रक्शन करते हैं। जब हमारा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चेंजेस आए हैं तो उस रोड को हम लोग जो कर्व बन रहा है उसको हॉरिजेंटल कर्व बोलेंगे। अब ये सर्कुलर होगा तो सर्कुलर के अंदर में ही आएगा, अगर कोई डिफरेंट टाइप होगा तो दूसरा उसके अंदर आएगा। एक और डायग्राम दिखाना चाहेंगे। अब इस डायग्राम को ध्यान से आप देखिए। ओके, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, देखो ऐसे जा रही है, फिर ये डायरेक्शन हुआ, फिर ये हुआ। ओके, ऐसे कहीं चेंज हो रहा है, मीन्स ये ड्यूलेशन होगा कहीं पे ऐसे ग्राउंड पे। ओके, जब इस तरीके का कहीं पे भी ड्यूलेशन होता है, एंड्यूलेशन, तब क्या होता है ऐसे कर्व भी बनते। क्यों, क्योंकि देखिए बिल्कुल प्लेन तो रोड नहीं जा रहा है,
ओके कहीं न कहीं ये हमारा अप डाउन हो रहा है। तो अब आप दिमाग से देखिए, अपने ध्यान से समझिए, इस डायग्राम को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि हाँ ये वर्टिकल हमारा कहीं न कहीं डिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज हो रही है। हॉरिजेंटली बिल्कुल सेम है। देखो अगर मैं कहूं ये एक्सिस हमारी वाई एक्सिस हो गई, ओके, और ये वाली एक्स एक्सिस हो गई, ये ले लीजिए आप। अब आप देखिए आपकी जो भी है ये जो प्लेन रहेगा वो तो सेम रहेगा, किसी भी आप पॉइंट पर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसमें जो डायरेक्शन में कोई भी ले लें, तो फिर क्या हो रहा है कि हमारा वाई डायरेक्शन में कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, यहां पर भी कोई न कोई कर्व ही तो बनेगा इस तरीके से। ओके तो ये जो कर्व बन रहा है, तो जैसे कि नाम दिया गया वर्टिकल कर्व्स, एज यूजुअली द कर्व्स इन डायग्राम आल्सो डिफाइंड एंड यू कैन अंडरस्टैंड what is difference between the horizontal curves and vertical curves. After that, if the center point we find for the horizontal or vertical curves and the radius or the same at each point or the tangent point or the meeting points of the two direction of the roads, highway, canals, and if at both points the radius with center of that curves are equal, then we can say that is circular curves. Okay, so in the circular curves, how we know about the horizontal and vertical, you understand why these two diagrams. Okay, this is the horizontal and this is the vertical curves. ओके तो ये इंट्रोडक्शन आपके लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर्व्स का हो गया है, इससे आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं कि कैसे आपको लिखना रहेगा, वो आपने देख लिया। तो इसको लिखने के लिए आप ये समझ लीजिए कि हॉरिजॉन्टल कर्व्स को कैसे लिखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कर्व्स की डिफिनेशन लिखने के लिए आप लिख सकते हैं कर्व्स प्रोवाइडेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन टू हैव द ग्रेजुअल चेंज इन द डायरेक्शन आर नोन एज हॉरिजॉन्टल कर्व्स। ओके तो कर्व्स provided in the horizontal plane to have the gradual change in the direction are known as the horizontal curves. सिंपल सी ये डिफिनीशन लिखी है, आप इसको लिख सकते हैं और एग्जाम में इस डिफिनीशन का यूज कर सकते हैं। वर्टिकल कर्व्स क्या होंगे, ये आप लिख सकते हैं कि वर्टिकल कर्व्स जो हैं कर्व्स प्रोवाइडेड इन द वर्टिकल प्लेन टू ऑब्टेन द ग्रेजुअल चेंज इन ग्रेड आर कॉल्ड द वर्टिकल कर्व्स। ओके तो ये डिफिनीशंस हो गई, क्या होते हैं ये भी आप समझ गए हो। दोनों हॉरिजॉन्टल में जब भी हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बिल्कुल भी अगर चेंजेस होगा तो उसको हॉरिजॉन्टल कर्व बोलोगे, और वर्टिकल में जब हमारा वाई एक्सिस पे कोई भी चेंजेस अगर है तो उसको हम लोग वर्टिकल कर्व बोलेंगे। ओके आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल कर्व्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी काम करते हैं, अगर कोई भी चीज़ करेंगे तो सबसे पहले होगा कि हमें इसकी क्या ज़रूरत है। ओके वाई वी कंस्ट्रक्ट दीज कर्व्स, वाई वी हैव स्टडी और वी विल लर्न अबाउट द कर्व्स। पहला क्वेश्चन यही आना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट्स हो उसके अंदर अगर ये चीज़ आती है कि क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, तभी आप समझेंगे कि क्या चीज़ है। तो कर्व्स हमको क्यों पढ़ने हैं ये चीज़ समझ लीजिए आप, देखते हैं। ठीक चलिए देखिए, तो यहां पे हम बता रहे हैं आपको ओके तो नीड ऑफ द प्रोवाइडिंग कर्व्स, इंट्रोडक्शन जो आपका है पूरा इस यूनिट में, और इसमें अब हम लोग शुरू कर रहे हैं कि क्या नीड रहेगी हम लोगों की कि कोई भी कर्व प्रोवाइड जो हम करा रहे हैं। ओके तो अभी पहले ये समझ लेते हैं, हमने देख लिया है कि कर्व्स क्या होते हैं, सिंपल सा सर्कुलर कर्व्स के बारे में समझ गए हैं। उसके बाद में वी हैव स्टडी अबाउट द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व्स, वो हमारे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहे थे कि जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसके हिसाब से। ओके अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कर्व्स, जब हमारा देखा जाएगा कि कैसे ज्वाइनिंग हो रही है, स्ट्रेट लाइन को कैसे चेंज कर रहे हैं उस कर्व के साथ में। ओके तो अभी हम टाइप्स ऑफ कर्व्स भी जानेंगे, उससे पहले ये वाला हम टर्म्स समझ लेते हैं कि हमारा नीड्स ऑफ प्रोवाइडिंग कर्व्स क्या है, क्यों हम कर्व्स को प्रोवाइड करते हैं। ओके तो जितना मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया, आई होप कि आप समझ तो गए होंगे कि इसकी क्या ज़रूरत है। फिर भी यहाँ पर आप देखते हैं कि कर्व्स आर नीडेड ऑन हाईवे, रेलवेज एंड कैनल्स फॉर ब्रिंगिंग अबाउट ग्रेजुअल चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। दे आर प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग रीजन्स, कौन कौन से रीजन्स हैं,
to bring about gradual change in the direction of motion. Second, to bring about gradual change in the grade and for the good visibility. ओके, अब समझिए, आपको बिल्कुल भी कहीं पर हम ऐसे दीवार खड़ी कर दें और फिर एक इधर से कोई व्हीकल्स आ रहा है, कोई दूसरा इधर से आ रहा है और उसको दिख ही ना रहा हो, कहीं मुड़ना हो, तो आप देखते हैं ना, जब भी आप ऐसे टर्न पे जाते हैं जहाँ पे आपको दिख ना रहा हो तो क्या करते हो, हॉर्न में जाते हो, धीरे से निकलते हो, रोक देते हो। तो और कभी कभी ऐसा होता है तेज स्पीड से जाते हैं तो व्हीकल्स आपस में कोलैप्स कर जाते हैं, टकरा जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। ओके, तो वो सारी चीज़ें हम उसको हटाने के लिए भी कर्व्स को प्रोवाइड करते हैं। तो टू ब्रिंग अबाउट द ग्रेजुअल चेंज, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट गुड विजिबिलिटी। ओके, ये हमारे दो गुड विजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। और क्या होने चाहिए, नीड्स ऑफ प्रोवाइडिंग कर्व्स टू अलर्ट द ड्राइवर सो दैट ही मे नॉट फॉल अस्लीप। ओके, ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल आप जा रहे हो, स्ट्रेट जा रहे हो, कहीं से मुड़ना है, स्लीप ना हो जाए। कर्व्स प्रोवाइड कराते रहो थोड़ा रोड पे, तो कहीं ना कहीं उसको घुमाना पड़ेगा, तो वो स्लीप भी नहीं करेगा। ये वाला थोड़ा समझिएगा ध्यान से। फिर है आपका टू लेआउट कैनाल अलाइनमेंट्स, इसके लिए भी है टू कंट्रोल इरोजन्स ऑफ कैनाल बैंक्स बाय द ट्रस्ट ऑफ द फ्लोइंग वाटर इन द कैनाल्स। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसको भी आप समझिएगा कि जो कंट्रोल आपका होता है। देखो ये इरोजन वाला 2 पॉइंट्स, ये जो तीनों आए हैं 2 पॉइंट्स आपने देख लिए, 5 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं हमने। उन 5 पॉइंट्स के बारे में समझ लीजिए कि कर्व्स को क्यों प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले ग्रेजुअल चेंजेस के लिए, जो हमारे डायरेक्शंस होते हैं उसके लिए, किसी भी मोशन में कोई भी चीज़ हो रही हो। ओके, दूसरा हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि कभी कभी विजुअलिटी हमें सही दिख जाए। ओके, बिल्कुल शार्प हमारा टर्न ना हो, उसके लिए भी होता है। तीसरा जो हमारा है कि अगर हम पूरा स्ट्रेट रोड बना दें, बिल्कुल सोचिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक स्ट्रेट रोड बनी हो, तो ड्राइवर तो आराम से बस स्लीप कर ले, उसको डाल दिया, बस एक्सीलेटर फिट कर दिया, जा रही गाड़ी सुबह तक पहुंच जाएगी। लेकिन नहीं, अगर कर्व्स हैं, कोशिश की जाती है कि इतनी जल्दी जल्दी कर्व्स ना हो, लेकिन हल्के से भी कर्व्स हैं तो कहीं ना कहीं ड्राइवर उसके लिए एक्टिव रहेगा, तो वो स्लीप नहीं करेगा। ये भी हमें समझना है। लेआउट ऑफ कैनाल अलाइनमेंट, ये बनाना रहेगा। और 5वां जो पॉइंट्स है, अगर आप समझिए हम कैनाल के रिस्पेक्ट में बात करें, तो अगर आपकी कैनाल कोई, बिल्कुल फिर वही बात आई कि अगर इस तरीके से वाटर भी टर्न करेगा, तो ये वाटर जब इससे टकराएगा तुरंत, तो ये कहीं ना कहीं इन यहाँ से हमारे पार्टिकल्स जो सॉइल के होंगे उनको कट करेगा, और धीरे धीरे ऐसे कट करता रहेगा तो पूरा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इरोजन्स जो होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर हमारे क्या होगा, जो एम्बैंकमेंट्स होंगे, बैंक्स होंगे, वो सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो कंट्रोल करना है हमको इरोजन्स ऑफ कैनाल्स आल्सो ट्रस्ट ऑफ फ्लोइंग द वाटर इन दिस। ओके, तो ये 5 पॉइंट्स आपके हैं जो आप लिख सकते हो, नीड्स ऑफ प्रोवाइडिंग कर्व्स। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक जो आज डिस्कस किया है वो ये किया है कि कर्व्स क्या है, कर्व्स की डिफिनीशन समझी है। उसके बाद में हमने देखा है 2 कर्व्स के बारे में आपको बताया है, बेसिकली हॉरिजेंटल और वर्टिकल, वो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम और पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कर्व्स क्या होते हैं, और फिर उसके आगे हम लोग उसके डेरिवेशंस करेंगे और उसको फार्मूले को ड्राइव करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो उसके बाद में हमने ये देखा है कि तीसरे पॉइंट पे नीड्स क्या है हमारी किसी भी कर्व्स को प्रोवाइड करने की। तो सबसे पहले ये आप चीज़ ध्यान रखिए, कर्व्स की डिफिनीशन। आफ्टर दैट आप ये याद रखिए कि कर्व्स, हॉरिजेंटल कर्व्स या वर्टिकल कर्व्स आगे उसको कैसे डिफाइन करेंगे, या कोई भी ये टर्म यूज करता है तो कैसे समझेंगे। और उसके बाद में आप ये देखेंगे नीड्स ऑफ प्रोवाइडिंग कर्व्स। ओके, तो नीड्स ऑफ प्रोवाइडिंग कर्व्स में आप ये 5 पॉइंट्स याद रखिएगा। आपका कर्व्स जो रहेगा, कर्व्स आर नीडेड ऑन हाईवे, रेलवे और कैनाल। देखो इन 3 रिस्पेक्ट में है, हाईवे, रेलवे और कैनाल। बेसिकली यही 3 जगह हमको यूज करने हैं। ओके, तो हमको सर्वेइंग के कर्व्स यूज करने हैं, तो इन तीनों के रिस्पेक्ट में ही आप थिंक कीजिएगा, और तब आपको जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग है। तो इसमें जैसे कि टू ब्रिंग अबाउट द ग्रेजुअल चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सेकेंड पॉइंट है टू ब्रिंग अबाउट द ग्रेजुअल चेंज इन द ग्रेड फॉर द गुड विजिबिलिटी, दूसरा ये पॉइंट्स हैं, ये याद रखिएगा। तीसरा टू अलर्ट द ड्राइवर सो दैट ही मे नॉट फॉल ए स्लीप। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, थैंक यू।